Students, today we are going to study about the fats and oils. Previously, we have done with carbohydrates, proteins, and now the fats and oils. Fats and oils, a type of lipid involving three fatty acids hooked to a glycerol molecule, making a fat molecule or a triglyceride. Basically, I'm not talking about lipids. I'm talking about fats and oils. Lipids is a broader group of compounds that are insoluble into water. ठीक है, हमने इसमें से सिर्फ वो वाला पार्ट लेना है जो कि हमारे इस वक्त कंसर्न है फैट्स एंड ऑयल्स। मैं इस वक्त लिपिड्स की बात नहीं कर रही, लिपिड्स की आगे से टाइप्स आ जाती हैं जिसमें फैट्स एंड ऑयल्स है, स्टीरोइड्स हैं, स्टीरोल्स हैं, टर्पीन्स, मतलब ये सारी मैं उसको नहीं इस वक्त टारगेट कर रही, आई एम टारगेटिंग फैट्स एंड ऑयल्स। Type of lipids involving three fatty acid hooked to a glycerol molecule, making a molecular triglyceride. Saturated fats are usually solid at room temperature, while unsaturated fats remain liquid. Triglycerides are also known as neutral fats and are the most common fats in the body, serving as energy source, insulation, productive cushion around organs, as the most concentrated source of energy by providing 9 calories per gram compared to 4 calories per gram in either protein or carbohydrate. Okay. एज एन एड इन द एब्जॉर्प्शन एंड ट्रांसपोर्ट, क्योंकि ये फैट सॉल्युबल वाइटामिन जो हैं उनको साथ लेके जो है, जहाँ अगर बॉडी में फैट डेफिशिएंसी है या आप विटामिन ए डी ई के लेना चाहते हैं तो इसका कैरियर हमेशा फैट्स होते हैं। टू मेक द फूड्स मोर पैलेटेबल, जो टेस्ट होता है मोस्टली फूड्स के, इट इज़ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स, प्रोवाइड फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन और सेटिस्फाई एज फैट्स एंड ऑयल्स टेक मोर टाइम टू डाइजेस्ट in the stomach, help to maintain constant body temperature by providing an insulating layer, especially in the adipose tissue. Fatty acids basically क्या है? Already told you that one glycerol molecule जो है वो तीन फैटी एसिड्स जो है उनको सपोर्ट करता है। वो एक ट्राईओल है, मतलब तीन थ्री कार्बन वो एल्कोहल है ग्लिसरॉल। उसके साथ जो है वो अगर फैटी एसिड अटैच होते हैं थ्रू एस्टर लिंकेज, देन दे विल मेक एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड। अब ये जो फैटी एसिड हैं दे कैन बी वेरी building blocks of functional lipids. The common fatty acids of plants are C16 and C18 straight chain compounds with 0 or 3 double bond of a cis configuration. C16 अगर इसमें कोई भी डबल बॉन्ड ना हो, दिस इज पामिटिक एसिड, एंड C18 अगर इसमें कोई भी डबल बॉन्ड या मतलब स्ट्रेट सिंगल बॉन्ड्स हो ओनली, दिस इज स्टीरिक एसिड। ओके, अगर इसमें एक हो जाता है तो पामेटो ओलीक हो जाता है, एंड हम उसकी डिटेल्स आगे करते हैं। देयर आर मेनी डिफरेंट फैटी एसिड्स एंड दे कैन बी असेंबल्ड इनटू देयर फाइनल फॉर्म इन मॉलिक्यूल्स इन नंबर ऑफ वेज। फॉर एग्जांपल, इन फॉस्फोलिपिड्स a glycerol backbone is linked to two Fa molecules and one phosphate, and it will be a phospholipid, but it will not be a fat and oil. Do not generally exist free in large quantity in vivo, but are complex to other molecules depending on their function. Fatty acid chain is composed of an even number of carbon atoms, mostly always. Hydrophobic nature arises from lack of dipoles formed by C carbon hydrogen bond और carbon carbon bond जो होता है ये normally non-polar in nature होते हैं. That's why most of the uh, fats and oils are insoluble into water. Neither carbon nor hydrogen is very electronegative, which two elements found commonly in biomolecules. Okay, common fatty acids of animals and plant origin की बात करते हैं। ये इनका सिस्टमेटिक नेम है, ये ट्रिवियल नेम है और ये शॉर्ट एंड डेजिग्नेशन है। जहाँ भी 2-0 मतलब टू कार्बन फैटी एसिड की बात हो रही है, टू कार्बन विद जीरो डबल बॉन्ड, इट विल बी एसिटिक एसिड, राइट? एथनोइक बोलेंगे इसको, ये इसका सिस्टमैटिक नेम है। ब्यूटायरिक एसिड की बात करें तो ब्यूटानोइक 4 विद जीरो डबल बॉन्ड, हेक्सानोइक, ऑक्टानोइक, इसको नॉर्मली कैप्रोइक, कैप्रोलिक, कैप्रिक, लॉरिक, मायरिस्टिक, फार्मेटिक, स्टीरिक, रैकिडिक एंड बिहीमिक बोलते हैं। ये सारे जो हैं डोकोजानोइक हो गया, इकोजानोइक हो गया, ओक्टाडिकोनिक, ये सारे जो हैं विद जीरो डबल बॉन्ड। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं अगर मोनो
इनिक फैटी एसिड यानी सिंगल अगर डबल बॉन्ड हो, पामीटो ओलीक हो जाएगा। 16 में एक डबल बॉन्ड है जो कि कार्बन नंबर 7 के ऊपर प्रेजेंट है। दिस विल बी सिस 9 हेक्साडिकोनिक एसिड, राइट। फिर अगर जो है वो N12 जो है उसके ऊपर एक डबल बॉन्ड होगा, दैट विल बी पेट्रोसिलिनिक एसिड। और ये हमारा अगर ऑक्टाडेकोनिक होगा, 18 कार्बन और 7वें नंबर के कार्बन के ऊपर जो है एक डबल बॉन्ड होगा। सिस रेक्सिनिक, इरूसिक और नर्वोनिक, ये सारे जो हैं सिंगल बॉन्ड के साथ जो अगर सिंगल बॉन्ड है और ये नंबर ऑफ कार्बन एटम है। नेक्स्ट आ जाता है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैज़ अ लॉट ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस एंड अगर 9 और 12, अच्छा इसकी काउंटिंग जो है ये दो तरह की होती है, एक ओमेगा काउंटिंग होती है और एक होती है जो आप काउंटिंग करते हैं फ्रॉम द फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, एसिड है ना तो कार्ब जो इसकी कार्बोक्सिलिक ग्रुप के एंड से होगी वो इसकी उसको हम उसको एन 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 कॉन्फ़िगरेशन बोलते हैं, यानी एन नंबर। ठीक है, लेकिन जो ओमेगा 3 वो इसके दूसरे एंड से जो इसकी काउंटिंग होगी वो दूसरे एंड से होगी। इसकी एक्सप्लेनेशन आगे आ जाएगी। 9 12 ऑक्टा डेकोडाइनोक लिनोलिन ओलीक है ये। ठीक है, दो डबल बॉन्ड है और ये पहला डबल बॉन्ड इसका 6 कार्बन के ऊपर है और ये 18 इसके अंदर जो है वो जैसे स्टीरिक एसिड, फिर लिन ओलीक है, उसके बाद आ जाएगा लिनोलिनिक। ठीक है, गैमा लिनोलिनिक इसमें जो है 6 नंबर पे है। अल्फा लिनोलिनिक में 3rd नंबर कार्बन के ऊपर भी है एक डबल बॉन्ड। और रैकिडोनिक एसिड जो होता है इसमें 4 डबल बॉन्ड होते हैं 20 कार्बन्स के साथ। और ईपीए जो है वो और डीएचए डिकोजा हेक्सानोइक एसिड जो है ये हमारे पास 22 इसके अंदर कार्बन है। ये पोली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स बोलते हैं हम इनको। और ये डीएचए जो है ये बेसिकली हमारे नर्वस सिस्टम में, हमारे ब्रेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे बच्चों में ब्रेन डेवलपमेंट के लिए इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। ओके, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डबल बॉन्ड की जब बात करते हैं, फैटी एसिड में बी सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सम फैटी एसिड्स आर सैचुरेटेड मीनिंग दैट दे कंटेन नो डबल बॉन्ड बिटवीन टू consecutive carbon atoms of the alkyl chain. Some fatty acids are monounsaturated, meaning that they contain only one double bond between two consecutive carbon atoms of the alkyl chain. Some fatty acids are polyunsaturated, meaning that they contain more than one double bond in the alkyl chain. Saturated fatty acids की बात करते हैं। The term saturated mean that the hydrocarbon tails are saturated with hydrogen atoms. No C डबल बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट नहीं है, यानी मजीद हाइड्रोजन एटम जो है उनकी गुंजाइश नहीं है इन द टेल। तो saturated fats form relatively straight chain that bunch closely together and the result in a dense solid fat that does not melt at room temperature. ठीक है, ये क्या होता है, ये स्ट्रेट चेन्स होती हैं, इनके बीच में कोई भी हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नहीं होता, क्योंकि जहाँ भी डबल बॉन्ड होगा तो बच्चों सिग्मा बॉन्ड के निस्बत जो पाई बॉन्ड होता है ना, दैट इज़ मोर इजीली ब्रेकेबल, मोर रिएक्टिव। सिग्मा बॉन्ड जो होता है या सिंगल बॉन्ड या कोवेलेंट बॉन्ड जो होता है दैट इज़ मोस्ट डिफ़िकल्ट टू ब्रेक। और दूसरी बात ये है कि जब सी सी के बीच में दो कार्बन के बीच में या कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, तो वो पहले बात हो चुके हैं, इनके ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होते, इसलिए ये क्लोजली जो है इनके पास वो कोई चोर खाना नहीं होता हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कि ये किसी और के साथ भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना लें। ठीक है, तो कार्बन एक 4 कार्बन 4 कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट है, तो इस वजह से ये न्यूट्रल काइंड ऑफ होता है। तो जब ये स्ट्रेट सैचुरेटेड फैटी एसिड्स की ये देखें बात करते हैं हम, तो ये स्ट्रेट चेन्स होती हैं, इसलिए आपस में इतनी क्लोजली ये बंच करती हैं कि इनके पास जो है ना ये इसी वजह से ये जो है सॉलिड इनकी जो डेंसिटी जो होती है वो सॉलिड होती है। सैचुरेटेड फैटी डिक्रीजेज द ऑक्सीजन सप्लाई टू बॉडी टिश्यू, हाइपोक्सिया, choking them by making the red blood cells stick together, becoming less mobile and less able to transport oxygen, common in many degenerative diseases. सैचुरेटेड फैटी एसिड की यहाँ पर जो बात हो रही है वो बात हो रही है इसका फिजियोलॉजिकली जब ये किसी डिजीज़ वगैरह में जब ये चोक कर देती है आपकी नालियों को, आपकी वेन्स को, आपकी, ये उसकी बात हो रही है कि ये मोस्टली बॉडी टिश्यू में हाइपोक्सिया कॉज करती है। दे फॉर्म पार्ट ऑफ ऑल मेम्ब्रेन इन द बॉडी बट आर यूज मेनली एज फ्यूल।
Body makes saturated fatty acid out of excess of calories in the diet and stores them as body fat. होता ये है कि जब आप ग्लूकोज भी खाते हैं ना, तो वो ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस के ज़रिए जो है वो ग्लूकोज को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू फैट। आपकी बॉडी में फैट जो है मोस्ट न्यूट्रल एलिमेंट है, और ये बॉडी की जो कैपेसिटी है फैट स्टोरेज की वो सबसे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ग्लूकोज, स्टार्च और प्रोटीन। Unsaturated fatty acid consists of monounsaturated, polyunsaturated, super unsaturated fatty acid, more than 6 double bonds होते हैं। Those are called super unsaturated, जहाँ पर और कोई गुंजाइश ही ना हो आपकी जो है वो डबल बॉन्डिंग की। Carbon carry less hydrogen, making either mono or polyunsaturated, as they do not have a full set of hydrogen atoms that chain kink and cannot bunch together, resulting in their being more liquid at room temperature। ये जो कि आपका ऑयल जो है वाई इट इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड वाई योर फैट जो होती है ये सैचुरेटेड। ये देखें, ये इसकी एग्जांपल दी गई है कि जब एक हाइड्रोजन वहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगी तो वो किंक जो है वो इसका एक फिनोमेना है केमिस्ट्री में, कि वहाँ पर किंक होगा और वो बंचिंग नहीं हो सकेगी मॉलिक्यूल्स की आपस में। ठीक है, जिसकी वजह से इट टेंड टू बी मोर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। The fewer the hydrogen atom, the more kink in the chain and the more fluid the fat। कितने जितनी ज़्यादा किंक्स होंगे एक चेन के अंदर में, जितनी ज़्यादा वो ब्रेकिंग होगी, उतना ज़्यादा जो है वो इट विल टेंड टू बी फ्लूइड। द फॉलोइंग इज जनरल रूल ऑफ वेदर फैट विल बी फ्लूइड और सॉलिड। up to 8 carbon is liquid at room temperature, up to 10 carbon is liquid at body temperature, more than 10 carbon is solid at even body temperature। Body metabolizes up to 12 carbon fatty acid to produce energy and are not stored as fat. Therefore, they are incorporated into diets of those with digestive or liver problems and are also popular with athletes। 12 कार्बन तक के जो फैटी एसिड्स हैं वो हमारी बॉडी मेटाबोलाइज करती है। अगर उससे बड़े कार्बन जैसे पामिटिक एसिड, स्टीरिक एसिड, उसको हमारी बॉडी जो है उसको मेटाबोलाइज नहीं करेगी, उसको एज अ फैट ही स्टोर कर लेगी। ठीक है, टू मच मीडियम चेन फैटी एसिड्स प्रोड्यूस एन अनप्लेजेंट स्क्रैची सेंसेशन एट द बैक ऑफ द थ्रोट। लेकिन अगर मीडियम चेन, इसीलिए बच्चों ये जो मोस्टली डाइट्स आती हैं जिसको हम कहते हैं कीटो डाइट, जिसमें हाई फैट डाइट, उसमें हाई फैट डाइट में क्या करते हैं कि ये जो आपकी मीडियम चेन फैटी एसिड्स होते हैं ना 8 से 12 तक के, ये ज़्यादा उस वो वाली फ़ैट्स ज़्यादा कंज्यूम की जाती हैं। वो फ़ैट क्या करती हैं, वो बॉडी में जब मेटाबोलाइज़ होना शुरू हो जाती हैं तो बॉडी का एक सिस्टम है कि ये अपने अंदर की फ़ैट को भी उसके साथ मेटाबोलाइज़ करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इस वजह से फैट जो है वो जल्दी मेटाबोलाइज होती है बॉडी के अंदर एज अ मेन सोर्स ऑफ। आपकी बॉडी जो है जब आप इनटेक ही ये मीडियम चेन फैटी एसिड्स प्लस लिटिल अमाउंट ऑफ कार्बन एंड प्लस लिटिल अमाउंट ऑफ कार्ब्स कर रहे हैं, तो जब मेजर सोर्स है, मेजर फ्यूल ही आपका ये जा रहा है, तो बॉडी जो है इट विल टेंड टू डाइजेस्ट मोर फैट एज कंपेयर टू द फैट इंजेस्टिंग। तो इस तरह आपकी बॉडी फैट जो है वो भी पिघलती है। ये बेसिक फिनोमेना होता है इन कीटो डाइट्स। Monounsaturated fatty acids contain one double bond between the carbon atoms not saturated with hydrogen atoms. Food rich in monounsaturated fatty acids are generally liquid at room temperature and semi-solid when refrigerated. If the first double bond on the molecule is a third carbon from the methyl end, अगर जो पहला डबल बॉन्ड है वो मिथाइल एंड से, मिथाइल एंड है, आप अगर एक फैटी एसिड देखें तो CH3 डैश कार्बन डैश COOH, ये हमारे पास एसिडिक एसिड है सपोज। अगर मिथाइल एंड से अगर उसके बाद ब्यूटायरिक और कैप्रिक एसिड है, हेक्सानोइक एसिड, 8 कार्बन में अगर पहला डबल बॉन्ड जो है वो मिथाइल एंड से, कार्बोक्सिलिक एंड से नहीं, मिथाइल एंड से तीसरे नंबर पे होगा, देन इट विल बी कॉल्ड एज ओमेगा 3 फैटी एसिड। In if the first double bond appears at the sixth, it will be omega 6 fatty acid. Palmito is oleic acid, and oleic acids are important example. By replacing saturated fats with monounsaturated fats can be more effective in lowering LDL, bad cholesterol, than by using polyunsaturated fats alone। यहाँ पर एक बड़ी ही पते की बात उन्होंने बताई है
कि अगर हम सैचुरेटेड फैट्स को सिर्फ मोनो अनसैचुरेटेड फैट के साथ रिप्लेस कर दें रादर देन कि हम पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स पे डायरेक्ट चले जाएं, तो आपका जो है सिर्फ मोनो अनसैचुरेटेड फैट से रिप्लेस करते हैं, जैसे पामीटो ओलीक या ओलीक एसिड जो है, तो आपका जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है यानी बैड कोलेस्ट्रॉल है वो वैसे ही रिड्यूस होगा इफेक्टिवली। Excess of monounsaturated fats can lead to health problems through the interference of the chemical conversion of the essential fatty acid into prostaglandins. Prostaglandins hormones होते हैं used in the membrane similar to the saturated fatty acid and can be broken down to produce energy in the same way by the same enzymes. पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड इसको अच्छे से मेमोराइज़ करें। इसके जो भी क्वेश्चंस इसको बुक से पढ़ें, जो भी क्वेश्चंस आपके जहन में आते हैं वो पूछें और इसको प्रॉपरली हम जो है वो लाइव क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।